Subject and predicate, that is chapter number 2 of grammar we'll be doing today. So before we begin with this, can you please tell me what is the sentence? Garima, unmute yourself quickly. Garima. Jyot Singh, can you unmute yourself and tell me what is the subject? Yes. मैम कुछ जवाब देना. Yes, Jyot. मैम जब कुछ आगे लगाओ. Sorry, come again. मैम नाउन. You're not audible. Be loud, better. Benita, you unmute yourself, better. What is the subject? Subject is? मैम सब्जेक्ट किसी के बारे में बात कर. फोन खराब हो गया, हैंग हो गया. Themselves muted. Mute yourself. चोरी पे के फोन नु. Again, muted. Please mute yourself. फोन दौड़े पे यंदे. मम्मा स्विच. Alright, और subject, what is subject? Subject होता है sentence में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जो person action कर रहा है उसे हम subject बोलते हैं. So a subject is the person about whom we are talking. Now person का मतलब यहाँ person नहीं है. Person का मतलब it can be a person, place, animal or thing. That means it can be a noun or a pronoun. जिसके भी बारे में सेंटेंस में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और सब्जेक्ट इज ऑल्सो doer of an action. Doer of an action. Action करने वाला. I am playing cricket. यहाँ action हो क्या कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का जो एक्शन है वो कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ. That means I am the doer of an action. Action doer मतलब एक्शन करने वाला. जो पर्सन एक्शन करता है उसको बोलते हैं डूअर, करने वाला. ठीक है. कैट इज स्लीपिंग. यहाँ पे कैट क्या कर रही है? एक्शन कौन कर रहा है? कैट का सॉरी सोने जो स्लीप करने का एक्शन है वो कौन कर रहा है? कैट कर रही है. सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एन, यानी कि वो एक्शन कर रहा है. So, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो that is not clear. जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में बात करें या हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. एक्शन करने वाला जो पर्सन है जो भी सेंटेंस में एक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. Right? So what is a subject? A subject is a doer of an action or a subject is the person about whom we are talking. जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. अगर हमें सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में सेंटेंस को अगर डिवाइड करना है तो हम किन 2 पार्ट्स में कर सकते हैं? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 पार्ट्स of a sentence. सेंटेंस के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? 1 पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है सब्जेक्ट. ठीक है. सो अगर हमें एक सेंटेंस को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में तो उसके 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होता है उसका प्रेडिकेट. दिस टू यू हैव डन इन क्लास 3 में भी आपने ये किया है. राइट? सो 2 parts of a sentence are subject and predicate. Now subject we have already discussed कि subject क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है या जो कोई एक्शन कर रहा है सेंटेंस में उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. राइट? मेहती बेटे, what are you writing? I think you need to pay attention here. Once this is clear, then you can write anything. Okay? If you concentrate on writing, then you won't be able to understand what I'm teaching.
So I hope subject is clear to everybody. Sentence का first part होता है subject. Please raise your hand if it is clear to everyone. What is subject? Fine. Subject is clear to everybody, right? Now, if I'll take an example first. Rahul plays cricket. What is the subject here? Write your answers in the chat box quickly. Rahul plays cricket. What is the subject here? Quickly in the chat. Rahul. Very good. Very good. Rahul here is the subject. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? राहुल के बारे में बात कर रहे हैं. So Rahul here is the subject. Clear? Now, इसके बाद after we have found out the subject, जब हमने subject find out कर लिया है, Predicate. Play. इसमें जितना part बचता है, जो बाकी सारा part बचता है, that is the predicate. Now this plays cricket. ये क्या बोले sentence में? This part is called the predicate. So जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वाला part sentence का हो जाता है subject. और सेकंड पार्ट जितना भी बचता है उसमें वो सारा क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बन जाता है. सो दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड दीस आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. राइट? ओके, वी टेक सम अदर एग्जांपल्स. सीमा is singing a song. Again, किसके बारे में बात हो रही है? सीमा के बारे में बात हो रही है. तो हमारा subject क्या? सीमा. Right? So this is the मैम सीमा. right? Now जितना भी sentence का part बाकी बचा है, क्या बचा है? Is singing a song. This whole part will be the predicate in this sentence. इस sentence में क्या हो गया है? Predicate हो गया. बेटे page number who's asking, I didn't ask you to open your book even. Look at the board and listen to me. That is your book. Right? So सीमा के बारे में बात हो रही है, तो सीमा is the subject here. और उसके बारे में क्या बात हो रही है? सीमा के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? सीमा के बारे में ये बात कर रहे हैं कि सीमा is singing a song. वो गाना गा रही है. उसके बारे में जो भी बात हम बता रहे हैं वो क्या हो जाती है? प्रेडिकेट हो जाती है. सीमा के बारे में क्या बात बता रहे हैं हम? सीमा के बारे में बता रहे हैं इज सिंगिंग अ सॉन्ग. वो गाना गा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका प्रेडिकेट. फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया. राहुल के बारे में क्या बात बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ राहुल प्लेज क्रिकेट. राहुल क्रिकेट खेलता है. ठीक है? सो सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट हो गया कि उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं. उसके बारे में हम जो बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा प्रेडिकेट. क्लियर टू एवरीबॉडी दिस मच? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज क्लियर. विल टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर. Now look here, please everybody. The girl in the frock is my friend. वो जो girl है frock में वो मेरी friend है. अब यहाँ पे quickly write down in the chat box what is the subject in this sentence. Hurry up, quickly. Yes. So look at the sentence here. The sentence is the girl in the frock is my friend. Okay, so some of the students might be thinking कि यहाँ पे हमारा subject the girl है. Is it so? क्या हमारा subject है वो the girl है? No, that is wrong. हम अकेले girl के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम एक particular girl के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सी girl? मैं उस girl के बारे में बात कर रही हूँ जो जिसने frock पहनी हुई है. The girl in the frock. So यहाँ पे the girl अकेला हमारा सब्जेक्ट नहीं है. हमारा सब्जेक्ट है वो वाली गर्ल जिसने फ्रॉक पहनी हुई है. मैं पर्टिकुलरली उस गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ जिसने फ्रॉक पहनी हुई है. सो दिस होल ऑफ इट इज द सब्जेक्ट. ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिस गर्ल ने फ्रॉक पहनी हुई है उसके बारे में बात कर रही हूँ. अब मैं उसके बारे में क्या बात कर रही हूँ आपसे?
मैं बता रही हूँ आपको कि वो मेरी फ्रेंड है। मैंने आपको ये बताया कि वो जो गर्ल है फ्रॉक पहनी हुई है उसके बारे में आपको क्या बताया कि वो मेरी फ्रेंड है, इज माई फ्रेंड। सो इज माई फ्रेंड लिखना predicate here and this will be the subject. Clear? So आपने ये नहीं करना कि गर्ल को देख के कहना कि यही सब्जेक्ट है, ठीक है? You have to be very particular कि कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जाना है. Now, if this much is clear, I'll tell you one more way to find out whether your answer is correct or not. अगर आपको डाउट है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं? जो प्रेडिकेट होता है बेटा, that always starts with a verb. प्रेडिकेट हमेशा किसी वर्ब से स्टार्ट होता है, चाहे वो एक्शन वर्ड होगा चाहे तो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है? सो प्रेडिकेट always starts with a verb. प्रेडिकेट को चेक करने का सबसे इजी तरीका ये है कि जब आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट कर लिया है उसके बाद आप देखो कि क्या मैंने जो प्रेडिकेट फाइंड आउट किया है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपका प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है। We'll take more examples. जैसे हमने अभी लिया था एग्जाम्पल यहाँ पे, राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है? हमने एग्जाम्पल लिया था कि राहुल हमारा सब्जेक्ट है हमने कहा था और प्लेज क्रिकेट हमारा क्या है, इट इज द प्रेडिकेट। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या मेरा आंसर ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूंगी? मैं प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ड दोबारा देखूंगी। फर्स्ट वर्ड प्रेडिकेट का क्या है? प्लेज, और प्लेज क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है? इसीलिए इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? प्रेडिकेट वाला करेक्ट है। सो अगर आपको कभी भी डाउट होता है सबसे इजी वे है फाइंड आउट करने का, प्रेडिकेट वहां से स्टार्ट करो जहां से वर्ब स्टार्ट हो रहा है वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट करो, वो आपका सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। और उसके पहले वर्ब से पहले वाला जितना भी पार्ट होगा, ये देखो ये वर्ब से पहले वाला जितना भी पार्ट है ये सारा आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट whether your answer is correct or not. Yes, is this much clear to everybody? I'll take a few more examples ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए। Delhi is a big city. Now, किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली के बारे में बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? दिल्ली, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या बात हो रही है दिल्ली के बारे में? दिल्ली के बारे में बात हो रही है कि वो एक बड़ी सिटी है, बिग सिटी है। So this would be the predicate. Now, the next thing that you need to see is क्या मेरा आंसर ठीक है? मैं चेक करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे चेक करूंगी कि मेरा प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्या मेरे प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ड इज वर्ब है? यस, ये हेल्पिंग वर्ब है। दैट मीन्स कि जो मैंने प्रेडिकेट फाइंड आउट किया है वो क्या है? करेक्ट है। ओके, आई विल टेक मोर एग्जांपल। Right. The next sentence is they were enjoying on the beach. वो बीच पे एंजॉय कर रहे थे। किसके बारे में बात हुई है? They. So that would be the subject. और उनके बारे में आपको क्या बता रही हूँ मैं ये बता रही हूँ कि वो बीच में एंजॉय कर रहे थे। So this is the predicate. Now again I want to check कि मैंने जो predicate find out किया क्या वो ठीक है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक करूँगी? पहला वर्ड देखूंगी वर्ब। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एंजॉइंग भी वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ही वर्ब्स हैं। इसका मतलब मेरा प्रेडिकेट मैंने राइट फाइंड आउट किया है। दैट मीन्स यू शुड बी श्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर है सबको? वनीता, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर?
Right. Let us, if anybody is not clear, please quickly ask me. If there is anybody who is not clear. मैम Yes. मैंने कल शाम को इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की Your voice is cracking. I am not able to listen to you. Write query in the chat box. If anybody is not clear, write your message in the chat box. Okay. So let us move further. But I am not actually able to listen to whosoever was asking that question. You can drop a message in WhatsApp to me and I'll answer your question. Okay? Okay, now let us move further. I'll tell you something more. Yes. Now the next thing is कि कई बार आपको एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिसमें आपको खुद से सब्जेक्ट दिया होगा, आपको प्रेडिकेट खुद से फिल करना है, कुछ भी बना के आप कर सकते हैं. Right? For this you can open page number 5 in the books quickly. Page number 5 in your books, chapter number 2. Please quickly open your books, page number 5. Exercise number 2. I hope I am audible to everybody. Yes, page number 5, exercise number 2. We'll discuss that. Add predicates to the following subject. इसमें आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको उसमें क्या करना है, प्रेडिकेट अपनी तरफ से कुछ भी बना के आना. Yes, बेटे. Please look at the board. So आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है that add predicate, यानी कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट दे दिया और आपको कहा कि उसमें प्रेडिकेट कोई भी अपनी मर्जी से ऐड करें. तो I'll take an example. The birds dash. Sir, screen is not visible. Am I audible now? Is the screen visible? Look at the board. I have taken example the birds, right? So this is the subject here. आपको इस तरह से आ सकते हैं एक्सरसाइज कि आपको सेंटेंस नहीं दिया पूरा, आपको सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको उसके साथ कोई सुटेबल प्रेडिकेट खुद से ऐड करना है. सो प्लीज राइट डाउन योर आंसर्स. नीति आनंद, बेटे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Can you tell me something that can be added to it so that it is a complete sentence? तो एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? Ma'am, what is example? Ma'am, what is example? The example is the birds. The birds here is the subject. इसके आगे हमने predicate अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड करना है ताकि पूरा सेंटेंस बन जाए. So what can we add to it? Ma'am, the birds are singing. Very good, excellent. The birds are singing. Okay, I'm writing the same thing on the board. So आप इसकी जगह और क्या बना सकते हैं? The birds fly. Are flying. ये भी बना सकते हैं ना? So that is your own wish कि आप क्या लिखना चाहते हैं. But you have to take care of one thing. अगर यहाँ पे आपको दिया the birds, तो यहाँ पे कोई बच्चा is singing नहीं लिखेगा. That would be wrong. Why? Because birds is plural. So whenever you are writing the predicate, आपको ये ध्यान रखना है कि subject singular है या plural है. ठीक है? So अब यहाँ पे birds है तो आंसर करेक्ट है. The birds are singing. लेकिन अगर कोई यहाँ लिख देगा the birds is singing, then it would be wrong. Why? क्योंकि birds तो plural था और is तो plural के साथ यूज नहीं होता है. ठीक है? So you have to take care कि आप verb जब लिख रहे हो तो verb की भी plural form यूज करनी है. Now look here, the birds fly in the sky. अगर मैं लिखूं the birds flies in the sky, which one is correct? First one is correct
or this is correct. The birds fly in the sky or the birds flies in the sky. Which one is correct? Yes. Number 1 or number 2? Which one is correct, bete? The birds fly in the sky or the birds fly in the sky? Quickly write your answers in the chat box. Number 1 लिखेंगे या number 2 लिखेंगे? Number 1 is correct or number 2 is correct? Okay, I've started getting the answers. And number 1 is correct. Yes, why number 1 is correct? क्योंकि birds जो है वो plural है और plural के साथ verb जब हम लगाते हैं verb के साथ s और es नहीं आता है, so हमारा आंसर होना चाहिए the birds fly in the sky. Birds flies in the sky would be wrong. Flies in the sky कब लिखेंगे? अगर यहाँ पे होता the bird. अगर ये सिंगुलर होता फिर हम लिखते the birds flies in the the bird flies in the sky. लेकिन यहाँ birds है तो हमने predicate accordingly लिखना है. This you have to take care of. Is it clear? Clear to everybody? I can't see everybody. Karman, is it clear? Right. इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है add subject. कि आपको subject add करना है. Predicate ऑलरेडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऐड करना है. जैसे डैश सिंग लाउडली. सिंग लाउडली हमारा प्रेडिकेट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. अब हमने यहाँ पे सुटेबल कोई भी सब्जेक्ट ऐड करना. प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में लिखिए क्विकली. Baby sing loudly. All right. यहाँ पे किसी ने आंसर किया baby. Okay. What else can be the answer quickly? Write down your answers within the chat box. What else can you write here? Yes. I'm not getting any answer here. Ma'am, your voice is not clear. Again, pin my video if you have not pinned. Yes. Dad, Yes. sing loudly. So what can Ram sing loudly? Baby sing loudly. Somebody has written. Okay. Fine. And bird. Anybody else? Better you want? Yes. Anybody else? Mommy. Stop writing. Stop writing. Stop typing in the chat box and look here on board. A baby here is singular. अगर मैं यहाँ लिखूँ baby sing loudly. Baby sing loudly. This is wrong. Why? क्योंकि sing है. G के साथ S नहीं लगा हुआ. इसका मतलब कि हमारा जो भी सब्जेक्ट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? प्लूरल होना चाहिए था. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और एस आता है. यहाँ एस और एस नहीं है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट हमने फिल करना था वो क्या होना चाहिए था? Your voice is not clear. तो इसका मतलब No, your voice is not clear. baby Audible. कुछ भी हो सकता है. बेबी And your voice is not correct. दैट इज योर विश. आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन वट एवर यू आर राइटिंग शुड बी इन प्लूरल. प्लूरल में होना चाहिए. क्लियर? आई टेक मोर एग्जांपल. डैश बर्ड ईटिंग फूड. Now tell me what can be the subject here? Dash were eating food. अब now one thing that you have to take care of is बेटा यहाँ were आ रहा है. were किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है. That means हमने जो भी सब्जेक्ट फिल करना है वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. So quickly write down the answers now. Quickly. What can be the subject here? Dash were eating food. Plural. The subject should be plural because there is were. I'm still not getting answers for this. Yes, my family were. My family is singular.
फैमिली वर्ड सिंगुलर होता है. बॉयज वर ईटिंग फूड. यस, वेरी गुड. They were eating food, Niti. Boys. That's correct. Very nice. Anybody else quickly, bete? Come on. So basically, whatever you will write here should be in plural. Why? क्योंकि यहाँ पे verb plural के साथ यूज होता है. अगर आप यहाँ पे boy word लिख देंगे, that would be wrong. Boy were eating. Boy तो singular है, तो उसका word नहीं आता. मुझे खत्म लग दिया